આ દેશની નાગાલેન્ડથી મહામહિમ અમારા રાષ્ટ્રીય યાદવ કુળના ગૌરવ એવા નંદકિશોર યાદવજી જ્યારે ગુજરાતની મુલાકાતે પધારી રહ્યા છે ત્યારે ઓલ ઇન્ડિયા યાદવ મહાસભા તરફથી અમે ગુજરાત એકમ દ્વારા એમનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. આ દેશના યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી અને આપણા પનોતા પુત્ર એવા શ્રીમાન નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે જે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીનું નિર્માણ કર્યું છે, આજે નાઇટોલ અમદાવાદ ખાતે છે. માનનીય મહામહિમ રાજ્યપાલ શ્રી આવતીકાલે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની ત્યાં સરદાર સાહેબની પ્રતિમાની મુલાકાત લેવાના છે અને એ કાર્યક્રમ પતાવીને પછી 2 દિવસ સુરતમાં એમનું કાર્યક્રમ છે. બધા જ કાર્યક્રમોમાં વ્યસ્તતા વચ્ચે પણ આજે અમદાવાદ ખાતે એમનું ભવ્ય સન્માન કાર્યક્રમનું બિહારી સમાજ દ્વારા, અખિલ ભારતીય બિહારી સમાજ દ્વારા આ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો છે. એમાં ઓલ ઇન્ડિયા યાદવ મહાસભાના અમે ગુજરાત એકમના આગેવાનોએ પણ માનનીય महामहिम श्रीનું हार्दिक स्वागत કરવા માટે हमने બધા આવ્યા છીએ. आज हिंदी भाषी महासंघ के तरफ से जो गुजरात में हिंदी भाषी का एक बड़ा संगठन चल रहा है, उसके तरफ से नागालैंड से पधारे हुए जो बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे और अभी नागालैंड के महामहिम गवर्नर श्री हैं, वो आज अहमदाबाद पधारे हैं. उनका हिंदी भाषी महासंघ की तरफ से एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है. इनका जो सम्मान का विधि और कुछ स्वागत प्रवचन होगा इनके लिए, जो आप आए हुए हैं वहाँ से और बिहार के, तो बिहार का जो समाज है, तो बिहार समाज हिंदी भाषी के अंदर बिहार समाज के लोग हैं आगे मान लो, तो उन्होंने ऐसा निश्चित किया कि भाई अपने बिहार से जो गवर्नर बने हैं और नागालैंड जैसे विस्तार के गवर्नर है और वो गुजरात में पधार रहे हैं, तो हमें उनका अच्छी तरह से स्वागत करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए. इसलिए हमने आज, और चूँकि यहाँ एक लिमिट जगह है एनेक्सी के अंदर कॉन्फ्रेंस हॉल में, और इनके पास समय भी कम है क्योंकि ये अभी बस रुकेंगे, आराम करेंगे और सुबह में चले जाएंगे केवड़िया, तो इसलिए इनके पास समय नहीं था, इसलिए हमने यही. मेरा नाम सोना सिंह राजपूत, हिंदी भाषी महासंघ का संगठन मंत्री प्रदेश. आज नागालैंड के राज्यपाल श्री नंदकिशोर यादव जी आज गुजरात पधारे हैं. संस्था द्वारा उनका सम्मान समारोह रखा गया है सर्किट हाउस एनेक्सी शाहीबाग में, और भिन्न भिन्न समाज के ऊपर चर्चा है और कार्यक्रम रखा गया है. आज रोज नंदकिशोर यादव जी જે ગુજરાત મહાસભા ઠા સાહેબ ચલાવે છે, એમને ઇન્વાઇટ કરેલા અને એ 6-7 વખતના બિહારના ધારાસભ્ય હતા. ધારાસભ્ય તરીકે એમને ઉત્સાહ આપ્યો અને અહીં જે લોકો હતા બિહારના અને બીજા પરપ્રાંતના લોકો હતા, એમને મળવાનો આ એમને કાર્યક્રમ રાખ્યો. બધાને ગેટ ટુગેધરનો આ ખાતે કાર્યક્રમ અને ખૂબ સરસ રીતે એડવર્ટાઇઝથી અમે જે આપણા રાજ્યપાલ જે કૃષિ ખેતીની વાત કરી છે કે કુદરતી ખેતી એના વિશેથી એમને થોડી ચર્ચા કરી અને માણસે કાયમ પ્રસન્ન રહ્યો એ વિશે એમને થોડીક વાતો કરી અને વાતો કરીને વધારો કરી છે. એટલે આવા મોટા વ્યક્તિ જેમણે ખૂબ ખાસગી રીતે કામ કર્યું હોય એમની જોડે સાથે બેસીને અને ચર્ચા કરીને એમાંથી કંઈક ને કંઈક શીખવાનું મળે છે. અને સમાજના સૌ લોકોએ એમને જે સમય ફાળવ્યો એ બદલ એમનો આભાર વ્યક્ત કર્યો. અને નરેન્દ્ર મોદીની વિચારધારા સાથે એમણે કહ્યું કે ભાઈ ક્યારે આ વ્યવસ્થામાં માણસે નાસીપાસ થયા વગર, રાજનીતિ એવી વસ્તુ છે કે જેમાં દરેક વ્યક્તિને ટેન્શન હોય છે. હું બધાને એમ કહું છું કે ટેન્શન ના લેવું જોઈએ, કાયમ પ્રસન્ન રહેવું જોઈએ. ભાઈ બીજાને ટેન્શન આપ્યું તો ઠીક છે, પણ આપણે ટેન્શન ના લેવું જોઈએ. હળવી રમૂજી કરી ને અમે સરસ વાતો કરી. નંદકિશોર યાદવજીને આ રથયાત્રા વિશે બી ચર્ચા કરી, આવનારી રથયાત્રા, કારણ કે જગન્નાથના ટ્રસ્ટી છે ને એમને બી એ પ્રમાણે એની બી વાત કરી કે જગન્નાથ મંદિર રથયાત્રા ખૂબ સરસ નીકળે છે. રથયાત્રા વિશે મેં થોડીક કરી ચર્ચા કરી અને એમને એક વાત કરી કે જ્યારે સોમનાથ મંદિર જ્યારે બનેલું ત્યારે રાજેન્દ્ર પ્રસાદ એ આપણા રાષ્ટ્રપતિ હતા, એ બિહારના હતા અને એ અહીં એમને ના પાડવા, જવાહરલાલ નહેરુએ ના પાડ્યા છતાંય કે અને એમણે આ સોમનાથ યાત્રાની જે વિધિ હતી એમાં હાજર રહ્યા હતા. એ ઘણી બધી ટકોરો કરીને નંદકિશોર યાદવજીએ અહીં સૌ લોકોને સરસ માહિતી આપી છે. અમે સૌ એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કર્યો. मैं अरविंद सिंह, महासचिव हिंदी भाषी महासंघ, गुजरात के आज पावन भूमि पर
बिहार के कद्दावर नेता रहे और अब नागालैंड के महामहिम राज्यपाल के रूप में हम सब के बीच एक अभिभावक की तरह, एक गार्जियन की तरह आज आदरणीय नंदकिशोर यादव जी का आगमन हुआ। शुरू से ही मिलनसार प्रवृत्ति के एक जुझारू नेतृत्व की उनका इतिहास रहा है। उसी तरीके से जब गुजरात आने की बात हुई तो हम लोगों के पास संवाद था कि आ रहे हैं, तो हमने भी हिंदी भाषी महासंघ की तरफ से स्वागत समारोह रखा और उस समारोह में वो आए और जिस तरह से आकर और जिस आत्मीयता के साथ हम सब लोगों को मार्गदर्शन किए, निश्चित रूप से उनके एक लंबे राजनीतिक जीवन का अनुभव आज उसमें छिपा हुआ था। उनका मार्गदर्शन था कि आप हम सभी अलग अलग प्रांतों हो सकते हैं, विभिन्न भाषाएं हो सकती है, लेकिन भाव एक हो सकता है। तो यह बात तो कोई घर का मुखिया ही, एक अभिभावक ही अपने लोगों से कहता है। तो बहुत ही आत्मीय रहा, आयोजन अच्छा रहा, मौका मिला हिंदी भाषी महासंघ का स्वागत करने के लिए, तो हम लोगों ने स्वागत किया। Tuan Buddha Mahavir Berumsi Kerajaan Besar Vidyapati Windan Bisra Aktivo और उससे ज़्यादा बनकर के जो जनता मसान बिहार तो इसे है कि दूसरी बात जब देखेंगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि गुजरात के रत्ती में पानी दिया तो दिया भारत को दो अंतरी दिया तो जहाँ पर बिहार ज्ञान और संस्कार की तकती है गुजरात आप एक तरह से हंसते कर्म और विकासशील और जहाँ ज्ञान और कर्म का इकट्ठा हो जाए तो कोई नहीं साई तो सौभाग्य मेरा कि मैं धरती को जाने का अवसर मिला देता और साथ साथ एक दो काम कोई लोग भी तो वही तो लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिए कि मात्र गुजरात की बात पंजाब की मातृभाषा तो मातृभाषाओं का सम्मान भी लगातार बढ़ता है। नहीं जो जबरदस्ती हम हिंदी ही बोलो ये सब जाए अपनी अपनी मातृभाषाओं का सम्मान करता और मैं तो कहता हूँ अगर आप दो तीन वाक्यों में कहें आप तो भाषा अलग अलग होना चाहिए, कोई आपत्ति नहीं, भाव एक देश हो सकता है लेकिन देश है और उससे बढ़कर के विचार करें वो भी क्या है। जैसे मैंने कहा बिहार से जाता हूँ, बिहार के विकास की गाथा सीखी तो गुजरात में तो बड़ा बात जब से मोदी प्रधानमंत्री बने तब से बिहार के विकास की घटना की गई इस पर कल्पना है पर आप अगर बिहार के लगभग जिलों के लोग होंगे वही उसको बदल में बिहार के लोग होंगे तो मेरा एक सौभाग्य चुनाव का असर बनाने का काम नहीं किया बिहार के प्रतिमान और जब उनका जाना इंग्लिश का सार्थक जा रहा है बड़ा जा रहा है किसी कोई भी जाती तो भाई मेरा कोई योगदान है मैं बिल्कुल एक बात कहूँगा कि मैंने कहा उनकी भाषा ही नहीं हो सकती है। आज देश एक नए दौर में नई टेक्नोलॉजी आ गई, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में संकोच मत करें, लेकिन उसके सकारात्मक पहलू हमेशा ध्यान रखेगा और सब पूछिए जैसा मैंने कहा कि एक नया माहौल बना है देश को विकसित देश की देश के लोगों ने क्या 2047 तक हम देश को विकसित देश की श्रेणी को खड़ा करने ये जो विकसित देश की श्रेणी को खड़ा करने का जो घोषणा है ये केवल सरकार के माध्यम से नहीं हो सकता है। सरकार का योगदान उसमें विकास नहीं कर सकते लेकिन कोई भी देश विकसित तभी होता है देश के लोग उसमें जीतता है। आप कहेंगे मैं क्या करूंगा मैं तो इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, मैं तो व्यापारी।
सबसे एक एक काम करना पड़ेगा जो इस क्षेत्र में काम करता है, चाहे वो शिक्षक हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, जापानी हो, जो भी इससे अपने अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ काम करने का कोशिश करेगा, तब देश तो आप सब अपने अपने देश को छोड़ करके यहाँ आए काम करने के लिए, यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं क्या, तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा अपना सर्वश्रेष्ठ देने का काम करिए, ताकि गुजरात भी आगे बढ़ सके और देश भी आगे बढ़ सके। एक बार आपने सम्मानित किया मुझे, जब मैंने फोन किया माधव जी का नंबर नहीं था मेरे पास, विधि का नंबर मैंने फोन किया आ रहा हूँ, अच्छा लगेगा। मैंने ये सोचा था और इनको तो नीलम से खबर दी नागालैंड में बताता हूँ, तुम्हारा जिस जिस प्रदेश में लोग हैं सबके गुजरात वाले क्या गया वहां संपर्क हो गया, पहले भी था ऐसे ही राजस्थान के बाकी गुरुद्वारे में गया, जैन मंदिर गया, अपने जो भी स्थान हो सकते हैं जहाँ पे लगे अपने लोग मैं घूमता पहले क्या करते घूमने का लेकिन वापस रहता हूँ। मैं पहले भी जब गवर्नर नहीं था, व्यास में मिलती था जो भी 7 वर्ष में जाएगा, तो मेरी एक आदत थी सप्ताह में 4 दिन से ज्यादा घर पे खाओ नहीं, 3 दिन बाद हम गवर्नर बनेगा कठिनाई हो जाएगी, तब मैंने देखा महीना में 1 दिन जरूर बात तो कभी गुजराती का खत्म कर जाता हूँ, कभी सारी का खत्म कर जाता हूँ, कभी किसी और का करता हूँ, तो एक संपर्क बन जाता है। मेरी आदत इसमें ठीक है। वैसे गुजरात में कई बार पहले आया हूँ, मैंने चुप नीति नहीं की, संजोग में कई बार प्रोग्राम बना कारण तो मैंने इस बार तय किया कि मैं जाऊँ, कि वास्तव प्रोग्राम पूरा है सूरत तो महंगाई सम्मेलन के प्रदेश से रखे, गुजरात मार्वेशन के प्रदेश से रखे, संजय अग्रवाल वो मेरे यहाँ प्रसिद्ध करने वाले आजकल यहाँ का तो उन्होंने कहा कि भैया एक बार आत्माना पड़ेगा, आएंगे सूरत जब आने का तो भाई देखेंगे आ जाए स्टैचू, तब आपके यहाँ आ गई आपके साथ बैठक होगी हमारी। परिश्रम करिए, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, और साथ साथ अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम, शिक्षा से बड़ा कुछ आत्म नहीं आज के जमाने में समय बदल गया, और शिक्षा में केवल मैट्रिक पास कर जाए, ग्रेजुएट हो जाए, ये कोई शिक्षा में नहीं रखता, तो समय ने काम कर जाता, नई टेक्नोलॉजी के साथ बच्चे आगे बढ़े, क्योंकि उनके ही प्रयास के कारण देश आगे बढ़ेगा। देश उन्होंने तो अपने जीवन आपको बता लिया थोड़ा ही है, ऐसे लोग मैं बड़ा दुखी होता हूँ जब लगती मुझे लगता है कि इसका तो उम्र घटना है, मैं 73 साल तो मेरी उम्र कितनी बची, 5 साल तक 5 साल बहुत तो 73 साल में खुशी मना रहे हैं, हम दुनिया के साथ ही दूसरा एक आगे रखने का हम सब जगह की बात करें, पूरी संस्कृति में दूसरा है, तो हम लोग क्या चाहते हैं, कोई भी हम अगर अच्छा काम करते हैं, सब काम करते हैं तो हम दीप जलाते हैं, वही समझ खुलता, लेकिन ये जो जंगले बनाते हैं केक काटते हैं मोमबत्ती बुझा देते हैं, तो अपने काम बंद करते हैं, आप केक काटो जो करते हैं मोमबत्ती बुझाने का काम, ये बादशाह दीप जलाने, एक दीप जला कर केक काटो, जाओ बुझाने का जो कल्चर है ये
हम लोग क्या उल्टा है कैसे तो हम लोग जीत जाते हैं इस्तेमाल तो मेरा जो आग्रह होगा कि इसको भी अपनाने का काम करिए ठीक है ताकि छोटे बच्चे साथ गाल देख रही एक धीरे धीरे समझाइए अब ये लोग मुक्ति हो जाता नहीं तब बहुत ही बोलने का नहीं है जो जैसा मैंने कहा ऊपर से यहाँ पे उसी में आपका भी बुला है परिवार का भी बुला है देश और देश उत्तर की आगे इतनी शुभकामनाएं बहुत